السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کیبنٹ آور کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بدھ کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور آن لائن ووٹنگ پر اتحادیوں کا مکمل اتفاق رائے ہے۔ چیف جسٹس نے فون کیا، مضحکہ خیز بیان ہے۔ ہائی کورٹ کے نوٹس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تمام اتحادیوں نے وزیر اعظم کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین اور وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی میڈیا سے گفتگو۔ گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم کے بیان حلفی کا معاملہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا رانا شمیم جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف، ایڈیٹر انویسٹیگیشن اور ایڈیٹر دی نیوز کو نوٹس۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور اٹارنی جنرل معاونت کے لیے طلب۔ کیوں نہ عدالت کا وقار مجروح کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے، چیف جسٹس اطہر بن اللہ۔ کچھ لوگ نواز شریف کو مظلوم ثابت کرانے کی مہم چلا رہے ہیں۔ بے وقوفانہ کہانیاں اور سازشی تھیوریاں گھڑنے کی بجائے یہ بتا دیں نواز شریف کے پاس ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے پیسے کہاں سے آئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کا ٹویٹ۔ غلط بیانی اور دھوکہ دہی نون لیگ کا وتیرہ ہے۔ ماضی میں بھی عدالتوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ نون لیگ کے پرانے طور طریقے اب نہیں چلیں گے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب کی میڈیا سے گفتگو۔ عام آدمی کے مسائل کا ادراک ہے، مہنگائی کو کنٹرول کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ حکومت کی توجہ ملکی برآمدات بڑھانے پر مرکوز ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کی کوئٹہ میں قبائلی مائدین سے گفتگو۔ بھارت کو ہندو آمرانہ ملک بنانے کے لیے سخت گیر ہندو ثقافت مسلط کی جا رہی ہے۔ مودی حکومت کے دوران اسلام مخالف رجحانات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ دیوالی سے متعلق اشتہارات میں اردو زبان کے الفاظ پر ہندو انتہا پسندوں نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ واشنگٹن کے آن لائن جریدے دی ڈپلومیٹ کی رپورٹ۔ ملک بھر میں خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی سب سے بڑی قومی مہم شروع ہو گئی۔ محکمہ صحت کے 4.25 لاکھ سے زیادہ اہلکار، 76,000 ویکسینیٹرز اور 1,43,000 سماجی رضاکار 9 کروڑ سے زیادہ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائیں گے۔ اور T20 ورلڈ کپ 2021 ICC ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان۔ بابر اعظم کپتان مقرر۔ ٹیم میں فاتح آسٹریلیا کے 3، پاکستان، انگلینڈ، سری لنکا اور جنوبی افریقہ کے 2 جبکہ نیوزی لینڈ کا 1 کھلاڑی شامل۔ 12 رکنی ٹیم میں کوئی بھارتی کھلاڑی شامل نہیں۔ شاہین شاہ آفریدی بھی ٹیم کا حصہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بڑھیں گے خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن یہاں لیں گے ایک بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پی ٹی وی لا رہا ہے رائزنگ پاکستان کا آپ کے لیے اسپیشل سیزن، یہاں یو کے یعنی برطانیہ سے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب ہم ملک سے آتے ہیں یہاں پہ، ہمارا دل اور ہمارا دماغ انہی گلی میں ہوتا ہے اور اسی ملک کے اندر رہتا ہے۔ یہ ہے برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر
اور یہ بلڈنگ 181 سال پرانی ہے. یہ کئی سو سال پہلے جو اوریجنل کعبہ کی چابی بنی تھی اس کے تقریباً 10-11 ریپلیکاس بنے تھے. یہ ان میں سے ایک ریپلیکا ہے. میرے فادر کو ہمیشہ تھا کہ میرے بچے برٹش بورن ہیں لیکن پاکستانی ان کو بنانا ہے میں نے, تو ایوری ایئر وہ ہمیں پاکستان لے کے جاتے تھے. رائزنگ پاکستان, ویلکم ٹو لندن. اور یہ ہے لندن کا دل, پیکیڈیلی سرکس. ایک ہمارے لیے بہت پرائڈ کی بات ہے کہ ہمارے اہم جو پاکستان میں ڈیزائنرز ہیں ان کو چنا گیا ہے کہ یہ انڈسٹری کے لیے وہ کپڑے بنائیں. اور یہ ہے کیمبرج سینٹرل ماسک جو کہ ٹاپ 6 نامینیشنز میں آئی ریبا سٹرلنگ پرائز آن آرکیٹیکچر پہ. یہاں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ درختوں کے اندر آ گئے ہیں آپ. ایگزیکٹلی. کیبنٹ آور کے آغاز میں آپ کو بتائیں, وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین اور وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے نوٹس کا خیر مقدم کرتے ہیں. یہ بات مضحکہ خیز شگوفہ ہے کہ چیف جسٹس نے چائے پیتے ہوئے فون کر دیا. وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہم نے اتحادیوں کے ساتھ تفصیل سے انتخابی اصلاحات پر بات کی ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اپنی گفتگو میں کہا کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بدھ کے روز دن 12 بجے طلب کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ 8 سے 10 بل لائے جائیں گے. ناظرین, اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف اور مریم نواز کیس سے متعلق انکشافات پر گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم سمیت 4 افراد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے کل صبح 10:30 بجے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے. عدالت نے خبر کی اشاعت پر جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان, دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی, ایڈیٹر دی نیوز عامر غوری کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کرتے ہوئے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. عدالت نے معاونت کے لیے اٹارنی جنرل خالد جاوید اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی طلب کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 صفحات پر مشتمل سماعت کے تحریری حکم نامے میں کہا ہے کہ کیوں نہ عدالت کا وقار مجروح کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے. سے بچائے کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے, تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں. اب ان کا کام ہو اور جلسازی کے خلاف ہو, جلسازی کے برعکس ہو, یہ ہو نہیں سکتا. میں ذرا جس موصوف کا نام لیا گیا میں اس کے اوپر پہلے آتا ہوں کہ 2015 میں میاں محمد نواز شریف نے اس کو لگایا چیف جج, جس کا حوالہ دے کے اب یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور عنایت کی گئی اس کو یہ پوزیشن, اور آج اسی کے بیان کو یہ اپنے لیے بیانیہ مرتب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن عجیب اتفاق دیکھ لیجئے یا ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ دیکھ لیجئے کہ 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر یہ چیز سامنے آئی. اب یہ کیا ہے سر کہ اگر ہم دیکھیں ایک ہی شخص ہے چارلس ڈراسٹن, وہی نواز شریف کے, مفرور نواز شریف کی بات کر رہا ہوں, وہ نواز شریف کے جو میڈیکل ہے وہ بھی وہ نوٹرائز کر رہے ہیں, نوٹری ان کی طرف سے ہو رہی ہے, اور یہ جو آج کی سٹیٹمنٹ کے اور اس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ بھی وہی شخص ہے. لیکن میں تو ایک چیز سمجھتا ہوں اسپیکر صاحب, اتنی لمبی تقریر جاننے کی ضرورت کیا تھی؟ آج سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جواب اگر ان کے پاس ہوتا تو کیا کہتے ہیں. نواز شریف نے جب لندن کی جائیدادیں ان کے سامنے آئی, پاناما لیکس آیا, دنیا میں ایکسپوز ہو گئے, اس ایوان میں آئے اور کہا کہ حضور یہ ہے وہ ذرائع.
और हुजूर है, और ये भी बेशर्मी देखिए, ये बेशर्मी देखिए कि इनको मुझसे गिला ये कि हमने जो प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। इनको स्पीकर साहब मुझसे गिला ये कि जो मेरे लीडर ने पैसे चुराए हैं वो मुझे रसीद क्यों नहीं लेके आ रहा। अंदाजा करें सर, मतलब कोई बेशर्मी की हद होती है सर। कि हुजूर ये है वो जराए, हुजूर ये है वो जराए से आगाज किया। फिर उसके बाद आपको याद है कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो कभी कतरी खत आया, बाप ने कहा कि बेटे जवाब देंगे, बेटी ने कहा कि बेटी जवाब देगी, फिर आखिर में पता चला कि दादा जवाब देगा। दादा हुजूर किधर है? कब्र में है, पूछना है तो पूछ लो। फिर उसके बाद एक और चीज हुई थी। मैं कहता हूं कि ये जो ज़बात दराज है असल में जालसाज है। आपको कैलेबरी याद होगा, कैलेबरी में जो जालसाजी हुई वो भी पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखी। मनी ट्रेल फिर भी मांगा गया, लेकिन मनी ट्रेल नहीं दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान के आला अदलिया के सीनियर तरीन जजेस ने इस शख्स को क्या कहा कि ये सादिक और अमीन नहीं है, मतलब झूठा है, करप्ट है, और गॉडफादर कहा गया। फिर उसके बाद फिर उसके बाद रसीदें आज तक नहीं आई। लेकिन स्पीकर साहब मैं एक और गुजारिश करता हूं, आज बड़ा अच्छा है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। ये शख्स जो अभी गुफ्तगू कर रहा था, इसने यहाँ पे कहा था कि मियाँ साहब फिक्र ना करे, लोग पानामा भूल जाए। इमरान खान ने उस वक्त कहा था कि न लोग भूलेंगे न मैं भूलने दूंगा, और आज भी अल्लाह का शुक्र है कि उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। और सर आज इस खबर को बनाने की इसकी जरूरत क्यों आई कि मरियम का केस लगा है 17 को, और उससे पहले ये हमेशा बयानिया कहते हैं, टीवी कहते हैं, रसीदें दिखा नहीं सकते, अरबों की जायदादों का जवाब दे नहीं सकते। लेकिन स्पीकर साहब मैं चंद सवाल करता हूं, इनको अगर अदलिया चाहिए तो जस्टिस कयूम की तरह, इनको जज चाहिए जस्टिस कयूम की तरह कि उसको फोन करके कहे कि किसको अंदर कर दो, किसको बाहर कर दो, किसको क्या सजाएं दो। इनको जर्नल चाहिए जनरल ज़ियाउल-हक की तरह, जनरल जिलानी की तरह। इनको मीडिया वो चाहिए जो इनके बयानी की तौसीक कर सके, तशहीर कर सके। लेकिन इसके अलावा कोई भी हो, जजिस को बदनाम कर दो, अदलिया को बदनाम कर दो, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दो, फौज को बदनाम करने की साजिश चलाओ, मीडिया का गला आप दबाओ, ये इनका तरीका ही वारदात होता है। स्पीकर साहब एक और चीज मैं इनसे पूछना चाहता हूं। स्पीकर साहब ये उन्होंने कहा भी कि मियां साहब ने इकामा रखा था, पता नहीं तनख्वाह और कोई कहानी इसने जाड़ी। स्पीकर साहब अगर थोड़ी सी शर्म होती ना, मैं इससे अभी सामने पूछता, अगर सामने बैठा होता कि थोड़ी सी शर्म होती है, थोड़ी सी हया होती है आप में, तो आप क्या करते? आप आज बात करते। सर इस शख्स ने पाकिस्तान का वजीर खारजा होते हुए खुद भी इकामा रखा था, इसके साथ जो दाएं हाथ में बैठा था इसने इकामा रखा था। स्पीकर साहब मेरे मुल्क का हल्फ लेके फॉरेन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, प्लानिंग मिनिस्टर, कोई चौकीदार, कोई नाई, कोई नामबाई वो बना हुआ है, वहां पे बैठे हुए हैं, तनख्वाह ले रहे हैं। स्पीकर साहब किस तरह ये पाकिस्तान का मुकदमा लड़ सकते थे? आखिरी चीज एक और, स्पीकर साहब यही शख्स था और इसका जो एक और है शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर, आज नहीं बैठा हुआ। मैं एक सवाल करता कि जब नवाज शरीफ का इन्होंने बयानिया बनाया कि पता नहीं पेट खराब है, दिल खराब है, गुर्दा खराब है, अगर यहाँ से नहीं गया तो मर जाएगा, और स्पीकर साहब जब बाहर गया, वैसे वो रिपोर्ट जो है ना वो नोटरी भी इसी शख्स ने की है जो आज ये कागज लहरा रहे हैं। स्पीकर साहब जब वो बाहर गया इन्होंने क्या कहा था शहबाज शरीफ ने कि मैं गारंटर बनता हूं, ख्वाजा आसिफ उठा कि पूरा ऐवान उसकी गारंटी देता है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि अमेरिका अफगानिस्तान में हार के चला गया, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी हो गया, कोरोना भी अल्लाह का शुक्र है सद उमर साहब बैठे हुए हैं उस पर काबू पा लिया, और मौसमी बीमारी PDM भी फिर से आ गई, लेकिन जो लंदन दवाई लेने के लिए गया था आज तक वापस नहीं आया। स्पीकर साहब इस ऐवान की इज्जत और वकार की बात कर रहे हैं, ये कब मुमकिन होगा कि जब आप अपनी जात का, अपनी जाती मफादात का मुकदमा ऐवान में ना लड़े, बल्कि पाकिस्तान के गरीब लोगों का, पाकिस्तान के मजदूरों का, पाकिस्तान के मेहनतकश तबके का, उन लोगों का मुकदमा आप इस ऐवान में लड़े। आप यहाँ पे अपनी बातें ना करें,
बल्कि पाकिस्तान के आम तबके की बातें करें। स्पीकर साहब, इन तमाम अरकान ने वोट लिया है, ये अपने इलाके की नुमाइंदगी के लिए आए हैं, लेकिन जब भी इस असम्बली में हम तकरीरें सुनते हैं कि एक शख्स नवाज शरीफ, जिसका भी जिक्र कर रहे थे, उनकी पहचान ये कि पाकिस्तान को लूटा, उनका एक ही नारा था कि हर पल का हो, हर पुल का हो, हर सड़क का हो, बेधड़क का हो। आज वो मफरूर है, इश्तिहारी है, इसाकदार मफरूर है, इश्तिहारी है, बेटे दोनों मफरूर और इश्तिहारी, और शहबाज शरीफ का दामाद अली इमरान मफरूर और इश्तिहारी, बेटा मफरूर और इश्तिहारी। अगर पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तानियों के नाम पे सियासत करते हो, तो इस ऐवान में आ जाओ, पाकिस्तान आ जाओ, अपने केसेस का सामना करो, लूटा हुआ पैसा वापस दे दो। और एक और चीज स्पीकर साहब, हमें कहा गया कि सब इकट्ठे होते हैं, बस सियासतदान इकट्ठे नहीं होते। अभी ये तकरीर खत्म नहीं हुई थी कि जैसे ट्रेजरी बेंचेस से अगर कोई तकरीर के लिए उठे तो आप ऐवान से भाग जाते हो। ये आपका दर्स था। अगर आपका ये मतलब है कि एनआरओ में साथ दे देंगे, आपके केसेस में साथ दे देंगे, आपकी चोरी के ऊपर बात नहीं करेंगे, तो स्पीकर साहब ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। इसके ऊपर सवाल भी पूछा जाएगा। और मैं आखिर इस पे खत्म करता हूं कि अदलिया पर ये हमला है जो आज इन्होंने किया। इससे पहले भी आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट पे इनकी तारीख है कि इन्होंने हमला कर दिया था। और जो भी अगर इनकी मर्जी के फैसले नहीं होते, इनके मर्जी का बयानिया नहीं चलता, उसके ऊपर ये हमला और होते हैं। तो स्पीकर साहब, मैं इन्हीं बातों के साथ खत्म करूंगा, आपकी इजाजत चाहता हूं। और ये इतना दमखम इनमें होना चाहिए जब बात करें। वफाकी वज़ीर मुआसरात मुराद सईद कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ अपने बेटों समेत मफरूर हैं, इनका बयानिया है। अब अदालत पर एक मरतबा फिर ये हमलावर हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करेंगे कैबिनेट आवर में। आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि कुछ लोग नवाज शरीफ को मज़लूम साबित कराने की मुहिम चला रहे हैं। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर ने कहा कि अंसार अब्बासी की एक हैरत अंगेज स्टोरी नज़र से गुजरी, जिसमें एक गिलगित के जज साहब फरमाते हैं कि वो साकिब निसार साहिब के पास बैठे चाय पीने, तो जज साहब ने फ़ोन पर हाईकोर्ट के जज को कहा कि नवाज शरीफ की ज़मानत इंतखाबात से पहले नहीं लेनी। कि मुल्क का वजीर दाखिला खड़ा होकर कहता है एक मुअज़्ज़ज़ अपोजिशन के मेंबर के बारे में कि मेरा मुंह ना खुलवाएं, इन्होंने कितनी चोरियां की हुई हैं। 15 मिनट ये तकरीर करता है, फिर वो मुअज़्ज़ज़ मेंबर खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं ये वजीर दाखिला मेरा मुंह ना खुलवाएं, इन्होंने कितनी चोरियां की हुई हैं। और दूसरे दिन खड़े होकर दोनों कहते हैं कि जमहूरियत की खातिर हम एक दूसरे की चोरी पे पर्दा डालते हैं। इसी मुकमुका को खत्म करने के लिए इमरान खान आया था, और ये मुकमुका वापस अब नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा वो बिल्कुल मुराद ने मुझे, क्योंकि तकरीर के अंदर जो है ना पुराने अच्छे वक्तों की याद मुझे नजर आ रही थी कि उनको वो अच्छे वक्त याद आ रहे थे जब फोन कॉल करके जज पूछते थे कि मियां साहब क्या हुक्म है, किसको सजा देनी है और कितनी सजा देनी है। अच्छा, जिन्होंने भुगता हुआ है उनको वो भी इधर ही बैठे हुए हैं, तो वो पुरानी यादें याद आती हैं। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बुरा नहीं मनाना चाहिए, लेकिन जो ख्वाहिश का जिसका इजहार उन्होंने किया वो ख्वाहिश नहीं पूरी हो सकती। अब स्पीकर साहब, जिस इशू के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता था इस ऐवान से, कि पिछले 3 दिन से मैं बहुत शोर हंगामा सुन रहा हूँ, ऑपोजिशन का भी सुना, मीडिया का भी सुना, लोगों ने तो ये कह दिया FIR कट जानी चाहिए। असद उमर ने तशद्दुद करने का कहा है। अच्छा, तशद्दुद तो उनको भी पता है कि हमने नहीं कहा, लेकिन मैं उनको समझाना चाहता हूं कि ये मैंने बात की क्यों थी। ये बड़ा मुफीद मशवरा था। ये जैसे बात कर रहे हैं कि एक ऐवान में तो बैठते हैं, हम एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, लेकिन कभी कभी जब दूसरा बहुत बड़ी गलती कर रहा हो तो उसको देख के इंसान को ख्याल आता है कि मुफ्त का मशवरा दे ही दे। ये स्पीकर साहब 2019 में पहली दफ़ा काम शुरू हुआ। अच्छा, उस वक्त हालात एक ऐसे बन रहे थे, ये हमारे मौजूद मेंबर यहाँ पे मौजूद हैं, इनके वालिद साहब मौलाना फजल रहमान ऐसे लग रहा था कि इमर्ज कर रहे हैं कि ऑपोजिशन के मेन लीडर वो उठ के आएंगे और ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग पीछे रह जाएंगी और मौलाना फजल रहमान जो है ना वो नंबर 1 ऑपोजिशन लीडर बन जाएंगे। वो यहाँ पर आ गए, यहाँ पे बहुत अरसे तक बैठे रहे। लोगों ने कहा वजीर आजम को जी आप पकड़ लें, बंद कर लें। उन्होंने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनका जमहूरी हक है, ये करना चाहते हैं ये बेशक करें एहतजाज। उस
डरने के नतीजे में, और अच्छा उसके अंदर हुआ क्या कि हमारे कुछ मीडिया के सहाफ़ी जो हैं वो इतने एक्साइटेड हो गए वो देख के कि वो भागे भागे वहां पहुंच गए और उन्होंने नवीद सुना दी पाकिस्तान को, जी कल गया इमरान खान, अब परसों गया और हुकूमत खत्म। जब वो धरना नाकाम हुआ तो उसके बाद से किसी ने ये बात सुनी है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो अपोजिशन के मेन लीडर हैं? अपोजिशन की दूसरी पार्टियों ने, बड़ी पार्टियों ने उनको लारे दे के इस्लामाबाद ले आए। इस्लामाबाद जब वो पहुंच गए तो बेचारे वहां पे जो लोग थे वो सब यही पूछते रह गए कि सानू नहर वाले तो पुल ते बुला के सोना माई किथे रह गया? सोने माई आराम से कराची और लाहौर बैठे थे। चलो जी, एक लीडर की उन्होंने सियासत खत्म कर दी। उसके अगली सर्दियों में फिर जोश चढ़ा, फिर उन्होंने कहा कि जी तहरीक चल रही है, धुआंधार जलसे। वो एक हमारे लीडर हैं जो दलेर बहुत ज्यादा हैं, तो वो इतने दलेर हैं कि वो उन्होंने अपने वर्कर्स को सबको दावत दी कि तुम जो ना फौज के साथ टकरा जाओ, और उन्होंने फौज के आर्मी चीफ के खिलाफ तकरीरें, डीजीआई के खिलाफ तकरीरें, नाम ले लेके तकरीरें कर रहे हैं। सिर्फ मसला ये था कि वो इस मुल्क से और उन फौज से 6000 मील दूर बैठे हुए लंदन छुपे हुए थे। वहां पे अभी तक वो प्लेटें चमचाई नहीं ठीक हो रहे, जिसकी वजह से वो कहते थे बाहर जा रहे हैं। 4 महीने जलसे करते रहे जी। 4 महीने जलसे करने के बाद अंजाम क्या हुआ? अंजाम ये हुआ कि वो पूरी पीडीएम ही तितर पितर हो गई। आखिर में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए और आपको अपोजिशन ही कहीं नहीं नजर आती थी। अब मैं तीसरे साल फिर नहीं सुन रहा हूं। लोगों ने मुझसे सवाल पूछे, जर्नलिस्ट मुझसे पूछ रहे थे कि जी ये क्या हुआ? मैंने कहा यार ये होता है कि बहुत सारी चीजें जो है ना मौसमी होती हैं। सर्दियां आती हैं, नज़ला आता है, जुकाम होता है, खांसी होती है, उसके बाद सर्दियां खत्म होती हैं, चले जाता है। इसलिए एक नया हमारी एक मौसमी बीमारी आई है। सर्दियां होती हैं, पीडीएम होता है, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, तकरीरें होती हैं, सर्दियां खत्म होती हैं, चले जाते हैं, ये फिर चले जाएंगे। तो इनसे हमें परेशानी कोई नहीं है और कोई इनको तशद्दुद हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने कहा था वो होगा जरूर। स्पीकर साहब, कुट ते पैनी है लेकिन सियासी कुट पड़नी है। इनको हमें हाथ उठाने की उसकी जरूरत नहीं है, ये सियासी तौर पे फिर फारिग हो जाएंगे। अब मैं मीडिया के दोस्तों से मैं सवाल पूछता हूं। मैंने बोला कि सुन ले, वो जो मीडिया में पीडीएम के सहूलतकार हैं, पूरे इदारों ने शोर मचा दिया, तो क्या वो अवाम के सामने खड़े होके इस बात को कबूल कर रहे थे कि वो पीडीएम के सहूलतकार है? मैंने तो किसी ग्रुप का नाम नहीं लिया, मैंने तो किसी सहाफी का नाम नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ ये कहा था पीडीएम के सहूलतकार हैं। और हां, मैं आज फ्लोर ऑफ द असेंबली फिर कहूंगा, ये हमें पता है और ये पाकिस्तान के अवाम को पता है, मीडिया के अंदर पीडीएम के सहूलतकार बैठे हुए हैं जो नाम के सहाफी हैं लेकिन असल में सियासी सहूलतकार हैं। तो हमारी मीडिया जो है आज़ाद है। जैसी इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तनकीद होती है, शायद दुनिया में ऐसी कहीं पर भी ना होती हो मीडिया की तरफ से। ना हमें अपोजिशन से डर है, ना हमें मीडिया से डर है, एक आज़ाद मीडिया से डर है, बल्कि हम समझते हैं कि एक आज़ाद मीडिया जमहूरियत का लाजिम व मलजूम है। इंशाअल्लाह ताला पिछली 3 सर्दियां भी गुजर गई, ये सर्दी भी गुजर जाएगी। 2023 का इंतजार रखें। 2023 में आखिरी में खत्म करूंगा ख्वाजा आसिफ की बात के ऊपर। एक बड़ी अच्छी उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया और वो ख्वाहिश ये थी कि इलेक्शन में लोग वो आए जो वोट लेकर आए हैं, वो आए जीत कर हुकूमत वो बनाएं जिनको अवाम ने वोट डाले हैं, वो नहीं कि जो दूसरे रास्तों से आने की कोशिश करें। इसीलिए उम्मीद है कि इस हाउस पर तमाम पाकिस्तान के सामने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के ऊपर वोटिंग होगी, जिससे चोरी का रास्ता रोका जाएगा। और सारा पाकिस्तान देख रहा होगा स्पीकर साहब कि कौन साफ और शफाफ इलेक्शन के साथ खड़ा हुआ है और कौन धांधली ज़दा निजाम के साथ खड़ा हुआ है। जी वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे। उनका ये कहना है कि एक दफ़ा फिर सर्दी के आते ही मौसमी बीमारी पीडीएम भी इस्लामाबाद का रुख करने के लिए एक दफ़ा फिर जल्द से जुलूस शुरू कर रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशियात फारूक हबीब ने कहा है कि गलत बयानी और धोखा दही नून लीग का वतीरा है। ये माजी में भी अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते रहे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है, नून लीग के पुराने तौर तरीके अब नहीं चलेंगे। उसको अपोज किया, अब आप अपना बिल लेके आ रहे हैं। अगर आप वाकई जर्नलिस्ट से इतने आपका जो है वो एक आपको फिक्र थी तो आपको उस बिल को सपोर्ट करना चाहिए था या उसमें तरमीम लेके आ जाते। आपने उसको अपोज कर दिया, हम तो उसको पास कर चुके हैं यहाँ पे। तो इसको हम बिल्कुल जी इनके इस बिल को हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑलरेडी जर्नलिस्ट के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पास कर चुके हैं। और जब हम पास कर रहे थे, ऑन रिकॉर्ड है, हिस्ट्री निकाल के देख लें, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ऐवान से बाइकआउट करके बाहर चली गई। I now put the motion before the House. Those who are in favor. अली मोहम्मद खान सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। सेनेट इजलास चेयरमैन सादिक सिंजरानी की ज़ेर सदारत जारी है। और नाज़रीन, इससे कबल आपको हम आगाह कर रहे थे कि वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशियात फारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कैसा हुस्न इत्तफाक है कि जो वहाँ पर नोटरी टेस्टिफाई करता है नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को, चार्ल्स ड्रॉस्टन, वही जो है वो राना शमीम की भी लंदन में बैठे हुए जो उनकी स्टेटमेंट है उसको नोटिफाई कर देते हैं। और 2018 के इंतखाबात से पहले की बात जिसका हवाला दे रहे हैं वो राना शमीम को आज जब मरियम सफदर के केस की जो अपीलें हैं वो मेरिट के ऊपर चल रहा है और 17 तारीख को वो केस लगा हुआ है, उससे चंद रोज़ कबल जो है उसको किसी अखबार में किसी सहाफ़ी के ज़रिए जो है वो स्टोरी पब्लिश करवाना, उसके ऊपर फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इन्होंने अपनी तारीख को दोहराया है। जहाँ पर इनके साथ कोई मिलकर मैच नहीं खेलता और इंडिपेंडेंटली फ़ैसले करता है, उसके ऊपर ये इस किस्म के जो है वो अटैक्स लॉन्च कर देते हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल सूबा है जहां सियाहत भी वसी मौके मौजूद है जिन्हें फ़रोग़ देना होगा। इन ख्यालात का इजहार सदर मुमलिकत ने कोयटा में बलूचिस्तान के कबायली माहिरीन से मुलाकात के दौरान किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तवज्जो मुल्क की बरामदात बढ़ाने पर मरकूज है, जिसके लिए हमें बरामदात और दरामदात में तवाज़ुन लाना होगा। तरमीम लाना चाहते हैं तो वो तो फिर ठीक है, लेकिन एक कंप्लीट पैरेलल कोई बिल लाना चाहते हैं वो माकूल बात तो नहीं है। तो ये एक इस पे गौर कर ले, अगर कोई तरमीम लाना चाहते हैं तो उस पे हाउस कर लेगा। वोट करें जी, जे ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस करें जी, कर ले। ऐवान बाला का इजलास भी जारी है चेयरमैन सादिक सिंजरानी की सदारत में, जबकि इस मौके पर सेनेटर फैसल जावेद ने इजहार ख्याल किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि खुसूसी अफराद मुआशरे का अहम हिस्सा हैं, इन्हें हुनरमंद बनाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स के दायरेकार को वसअत देना होगी। गवर्नर हाउस कोयटा में खुसूसी अफराद की फलाह बहबूद के हवाले से किए जाने वाले इकदाम पर ब्रीफिंग के मौके पर सदर मुमलिकत ने कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की के लिए खुसूसी इकदाम कर रही है। बलूचिस्तान के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज से सूबे में खुशहाली आएगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि बलूचिस्तान के नौजवान हुकूमत की जानिब से कारोबारी कर्ज की स्कीमों से फ़ायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में खुसूसी अफराद और बलूचिस्तान के नौजवानों को हुकूमत की कर्ज स्कीमों के बारे में रहनुमाई फराहम की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अफगानिस्तान में नाजुक सूरत हाल पर पाकिस्तान की कड़ी नजर है, खित्ते में अमन के क़याम के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसकी तफसील बताएंगे मोहम्मद रजी हैदर। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि अफगानिस्तान के अमन से पाकिस्तान समेत खित्ते का अमन मशरूत है। हमारी पूरी कोशिश है कि अफगानिस्तान में देर पा अमन कायम हो। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना था, कानून की पासदारी PDM समेत माशरे के तमाम लोगों का फ़र्ज़ है। हमें सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। इस मुल्क में बहुत सारे इम्तहान हैं। हमारे पड़ोस में तालिबान पे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आई हुई है। सो हमें अपने अड़ोस पड़ोस का भी ख्याल रखना है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी ख्याल रखना है, क्योंकि पाकिस्तान को इंशाअल्लाह सरहदों से कोई ख़तरा नहीं, लेकिन ऐसी साजिशें ज़रूर हैं कि पाकिस्तान को अंदर से डिस्टेबल किया जाए।
इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। अपोजिशन से भी मुझे ये कहना है कि AVM ही धांधली को रोकने का एक जरिया है, वरना फिर लोग कहेंगे धांधली हुई है। इससे पहले पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद में शोधा के वरसा में पैकेज की तकसीम के हवाले से तकरीब में खिताब करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, अमन व अमान के क़याम और जराइम की रोकथाम में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पुलिस पर आयद होती है। उनका कहना था कि महकमा पुलिस में मेरिट पर पढ़े लिखे नौजवानों की भर्ती करेंगे और ऐसे नौजवानों का इंतखाब मुल्क भर से किया जाएगा। तकरीब में शोधा और दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले पुलिस अफसरान के वरसा में 4 करोड़ 75 लाख रुपए के चेक्स भी तकसीम किए गए। मोहम्मद रजी हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर ने कहा कि CPEC से पाकिस्तान में सरमायाकारी की फ़िज़ा बेहतर हुई है। इस्लामाबाद में CPEC अथॉरिटी के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि चीनी सरमायाकार इसे मज़ीद बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। इजलास में पाकिस्तान में मौजूद तमाम चीनी कंपनीज के सरबराहान ने शिरकत की। CPEC के लिए वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी खालिद मंसूर ने ब्रीफिंग में बताया कि CPEC का बुनियादी मकसद पाकिस्तान में समाजी और मौशी तरक्की को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान में इस वक्त कोई 147 चाइनीज़ कंपनीज ऑपरेट करती हैं और क्योंकि वो सारी कंपनीज या अपने बिजनेसेस सेटअप कर चुकी हैं या उनका इरादा है कि पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन में उनके बिजनेसेस को उन्होंने सेटअप करना है, जो मुख्तलिफ अप्रूवल प्रोसेसेस से गुजरेंगे। तो आइडिया ये था कि उनको बुलाया जाए और उनको ये बावर करवाया जाए कि हमने CPEC अथॉरिटी के अंदर एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटेशन सेंटर कायम कर दिया है और उसके अंदर मज़ीद बेहतरी भी करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी और साबिक़ वज़ीर आला सिंध डॉक्टर अरबाब ग़ुलाम रहीम ने वज़ारत ख़ारिजा में मुलाकात की। मुलाकात में सिंध के अवामी मसाइल समेत सियासी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने सिंध में पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए डॉक्टर अरबाब ग़ुलाम रहीम की अमली काविशों को सराहा। वज़ीर ख़ारिजा ने डॉक्टर अरबाब ग़ुलाम रहीम को सिंध में हालिया कामयाब जलसों के इनेकाद पर भी मुबारकबाद दी। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल के नायब गवर्नर हमदुल्ला नोमानी ने कहा है कि अबूरी हुकूमत ने रोजगार के मौके पैदा करने और गुर्बत को ख़त्म करने के लिए शहर के तमाम हिस्सों में एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। अपने एक बयान में हमदुल्ला नोमानी ने कहा कि प्रोग्राम 2 मंसूबों पर मुश्तमिल होगा, जिसमें अवामी आगाही, शहर और नहरों की सफाई शामिल है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमतों की जानिब से 20 सालों में नहरों की सफाई नहीं की गई, जिसकी वजह से बारिश के पानी से तमाम सड़कों की हालत बदतर हो चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि नहरों की सफाई के लिए 2118 मर्द और अवामी आगाही के लिए 1803 खवातीन की खिदमत हासिल की हैं। नाज़रीन, वाशिंगटन के एक ऑनलाइन जरीदे द डिप्लोमेट के मुताबिक हिंदू बालादस्ती के हामी भारत को हिंदू आमिराना मुल्क बनाने के लिए सख्त गिर हिंदू सकाफत को मुसलत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में जरीदे ने कहा कि अब यह गैर मामूली भारत नहीं बल्कि अदम बर्दाश्त का हामिल भारत है। डिप्लोमेट के नामा निगार कविता चौधरी ने कहा है कि इस साल दिवाली से मुतालिक इश्तिहारात में उर्दू के अल्फाज के इस्तेमाल पर हिंदू इंतहा पसंदों ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में इस्लाम मुखालिफ रुझानात में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उर्दू मुल्क में सिर्फ मुसलमानों के लिए मुख्तस नहीं बल्कि उर्दू अल्फाज रोजाना हिंदुस्तानी ज़बान के अदब और रोज़मर्रा की तकारीर में वसी पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से रवा साल जुलाई तक अक्टूबर में भिजवाई जाने वाली तरसीलात ज़र 10.6 अरब डॉलर तक पहुँच गई हैं। अपने ट्वीट में वज़ीर ममलिकत ने कहा कि ये रकम गुज़श्ता साल के पहले 4 माह से 12% जबकि 2018 के पहले 4 माह से 63% ज़्यादा है। पेट्रोलियम डिवीजन ने कहा है कि घरेलू सार्फिन को दिन में सिर्फ 3 वक्त गैस मुहैया करने का कोई फैसला नहीं हुआ। इस हवाले से मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स एक गुमराहकुन खबर चला रहे हैं। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी एक वजाहती बयान में कहा गया कि सुई नॉर्दर्न को गैस की फराहमी से मुतालिक अहकाम दिए गए हैं और खाने के औकात में घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। इत्तलात और नशरियात के बारे में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास मियां जावेद लतीफ़ की सदारत में पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में खिताब में मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि हमें कानून की बालादस्ती के लिए जमाती वाबस्तगी से बालातर होकर अपना किरदार अदा करना होगा। कमेटी रुकन अली नवाज अवान ने कहा कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल काबिल सताइश पेशरफ्त है, जिससे मीडिया वर्कर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। कोरम पूरा न होने पर कमेटी का इजलास बर्खास्त कर दिया गया।
मजहबी उमूर के वफाकी वजीर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। इस्लामाबाद में सऊदी सफारत खाने की तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर ने कहा कि मुजफ्फराबाद और मानसहरा में सऊदी ताउन से बनने वाली मसाजिद पाकिस्तानियों के लिए तोहफा हैं। सऊदी अरब के सफीर नवाफ अल मालकी ने बताया कि जामे मस्जिद अल मुल्क अब्दुल अजीज़ में 10,000 से ज़ायद और जामे मस्जिद अल मुल्क फहद बिन अब्दुल अजीज़ में 6,000 से ज़ायद नमाजियों की गुंजाइश मौजूद है। कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर के LA-3 मीरपुर और LA-12 कोटली के असम्बली इंतखाबात में कामयाब होने वाले अरकान ने हलफ उठा लिया है। तकरीब हलफ बर्दारी स्पीकर चैम्बर में हुई। स्पीकर असम्बली चौधरी अनवारुल हक ने उनसे हलफ लिया। यासिर सुल्तान, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के बतौर सदर रियासत इंतखाब के बाद LA-3 मीरपुर की खाली होने वाली नशिस्त पर कामयाब हुए थे, जबकि पीपल्स पार्टी के आमिर यासीन चौधरी ने चौधरी मोहम्मद यासीन की LA-12 कोटली की छोड़ी हुई नशिस्त पर कामयाबी हासिल की थी। नाज़रीन, खसरा और रुबेला से बचाव की सबसे बड़ी कौमी मुहिम आज से मुल्क भर में शुरू हो गई है। महकमा सेहत के 4.25 लाख से ज्यादा एहलकार, 76,000 वैक्सीनेटर्स और 1,43,000 समाजी रजाकार 9 करोड़ से ज्यादा बच्चों को हिफाजती टीके लगाएंगे। मजीद तफसील बता रही हैं हुमा सदफ। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी इंसदाद खसरा और रुबेला मुहिम में 9 माह से 15 साल तक के 9 करोड़ 1 लाख से जायद बच्चों को हिफाजती इंजेक्शन लगाए जाएंगे। पंजाब भर में तकरीबन 4 करोड़ 66 लाख बच्चों को वैक्सीन के इंजेक्शन लगाए जाएंगे। सिंध में 1 करोड़ 90 लाख, बलूचिस्तान में 56 लाख और खैबर पख्तूनख्वा में 1.5 करोड़ बच्चों को हिफाजती इंजेक्शन लगाए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में 16,85,000 से जायद बच्चे इस मुहिम से इस्तेफादा कर सकेंगे। 15 नवंबर से शुरू होने वाली ये मुहिम 27 नवंबर तक जारी रहेगी। पहली दफ़ा कैंपेन चल रही है, पूरे पाकिस्तान में चल रही है। तमाम वालिदैन से गुजारिश है इस दरमियान में अगर आउटरीच टीम्स आपके पास नहीं आती तो हेल्थ डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन पे कॉल करके ज़रूर नोट करवाएं, ताकि अगर कोई एरिया मिस हो जाए उस एरिया को कवर किया जा सके। माहिरीन सेहत के मुताबिक खसरा और रुबेला तेजी से फैलने वाली बीमारियां हैं जो हामिला माओ और नौज़ायदा बच्चों को भी मुतासिर कर सकती हैं। हम लोग आपके बच्चों को टीका लगाने के लिए आपके घरों तक आएंगे। अपने बच्चों को रुबेला और खसरा का टीका लगवा कर उनका मुस्तकबिल महफूज बनाइए और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। महकमा सेहत के मुताबिक ये वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज है। ताहम किसी भी शिकायत का अजाला करने के लिए यूनियन काउंसिल्स की सतह पर डॉक्टर्स मौजूद होंगे और वैक्सीनेशन टीम्स सरकारी और निजी स्कूलों समेत घरों तक पहुंचेंगी ताकि कोई भी बच्चा वैक्सीन से महरूम ना रहे। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खसरा और रुबेला इंतहाई ख़तरनाक बीमारियां हैं। इसके तदारुक के लिए मुल्क भर में एक बड़ी कौमी मुहिम का आगाज़ किया गया है, जिसके तहत बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर जवाद हसन, पीड स्पेशलिस्ट एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, काफ़ी बड़ी मुहिम का आगाज़ किया गया है, कौमी मुहिम, और इसमें खसरा और रुबेला से बचाव की वैक्सीन के इंजेक्शन लगाए जाएंगे बच्चों को। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि खसरा, ख़ास तौर पर रुबेला, कितनी ख़तरनाक बीमारियां हैं और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? जी जी, जो रुबेला है और खसरा है, इस सिलसिले में जो गवर्नमेंट ने ये इकदाम उठाया है इसकी वैक्सीन का, ये बहुत ही अच्छा है। इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि जो रुबेला का इन्फेक्शन है और मीजल्स का इन्फेक्शन है, ये इसमें कुछ चीज़ें आपस में मिलती जुलती भी है। लेकिन जो रुबेला का इन्फेक्शन है, जिसको हम जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, तो ये माइल्ड है, ये इतना सीवियर इन्फेक्शन इसका नहीं होता। एज कम्पेयर टू जो मीजल्स का इन्फेक्शन है वो बहुत सीवियर हो जाता है बाज़ वक़्त, ठीक है, वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू रुबेला। जो रुबेला का इन्फेक्शन है उसके अंदर एक बच्चा जो है वो 14 से 21 दिन के अंदर उसके अंदर ये वायरस डेवलप होकर अपनी अलामात जाहिर कर देता है। और इसके अंदर शुरू में तो हल्का बुखार बच्चे को होता है, उसके साथ गला खराब हो सकता है, आंखें सुर्ख हो सकती हैं, सर में दर्द हो सकती है और उसकी गिल्टियाँ जो सी हैं वो भी नमूदार हो जाती हैं, प्रोमिनेंट हो जाती हैं, जिसको हम लिम्फोडेनोपैथी कहते हैं। इसमें रैश भी डेवलप होता है, चेहरे पर रैश आता है, गर्दन पर रैश आता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता फिर फेड हो जाता है। 3 to 5 डेज के अंदर आमतौर पर रुबेला सॉल्व हो जाता है। लेकिन इसकी जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है, जो इसका सबसे बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन है, वो उन बच्चियों में है जो कि वैक्सीनेटेड नहीं होती है अगेंस्ट रुबेला। वो बच्चियां जो कि रुबेला के अगेंस्ट वैक्सीनेट नहीं होती, जब वो प्रेगनेंसी उनको होती है और प्रेगनेंसी के पहले 11 हफ्तों के अंदर अगर उनको रुबेला का इन्फेक्शन हो जाए
تو اس کی انفیکٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ بہت خطرناک ہے ہونے والے بچے کے اندر، جس کے اندر یہ بچوں کے اندر خاص طور پہ ان ماؤں کو جن کو پہلے 11 ہفتے میں روبیلا کا انفیکشن ہو جائے اور ان میں ویکسین نہیں لگی ہوئی، ان کے اندر جو ہے نا یہ بہت بری علامتیں ظاہر کرتا ہے. جیسے ان کے اندر آنکھیں خراب کر سکتا ہے، اندھا پن ہو جاتا ہے، بچوں میں ہیئرنگ لاس ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے سننے کی جو سی ہے وہ قوت ختم ہو جاتی ہے، گردن توڑ بخار کے ساتھ بچے پیدا ہو سکتے ہیں، چھوٹے سر کے ساتھ بچے پیدا ہو سکتے ہیں، جگر کا اور تلی کا بڑھ جانا بھی اس میں شامل ہے. مطلب یعنی کہ یہ کہ اس کی کمپلیکیشنز جو سی ایک عام بچے میں اگر انفیکشن ہوگا تو اتنی نہیں ہوتی، لیکن ایک ایسی عورت کو جو کہ ویکسینیٹڈ نہیں ہے اگینسٹ روبیلا، اگر وہ پہلے 11 ہفتے میں انفیکشن. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں کوئی ایج بریکٹ بھی ہے کہ کتنی عمر کے بچوں کو حملہ آور ہو سکتا ہے یا یہ بڑی عمر کے لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے؟ دوسرا میرا ایک ساتھ سوال یہ بھی لیجیے گا کہ کیا یہ کنٹیجیس ہے کہا جا رہا ہے، جس طرح سے خسرہ میزل کنٹیجیس ہے، یہ بھی کنٹیجیس ہے، ایک شخص سے دوسرے شخص کو بآسانی منتقل ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، وائرل انفیکشنز یہ سارے جو سے ہیں یہ سارے کنٹیجیس ہیں. تو اس سلسلے میں جو گورنمنٹ کی جو یہ اسکیم ہے جس میں یہ ویکسینیشن کر رہے ہیں 9 ماہ سے لے کے 15 سال کی عمر کے بچوں میں، اس میں یہ امیونٹی ان میں لائف لانگ ڈیولپ ہو جائے گی اور ان کے آگے جو سے ہیں وہ چانسز بالکل نل ہو جائیں گے کہ وہ کیری کریں اس انفیکشن کو ڈیورنگ پریگننسی اور آگے اپنے ہونے والے بچے کے اندر ٹرانسفر کریں. اور دوسرا صحیح ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کوئکلی ہمیں یہ بتائیے گا چونکہ بچوں کو اب 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو کووڈ کی ویکسین بھی فراہم کی جا رہی ہے، کچھ ان پیرنٹس کے لیے بھی کوئی پیغام دیجئے جو کہ تھوڑا سے ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں، ویکسینیشن نہیں کروانی یا کسی بھی بہانے سے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ویکسینیشن کتنی ضروری ہے بچوں کے مستقبل کے لیے؟ جی میں آپ کو بتا دوں جو گورنمنٹ نے پچھلی ٹائیفائڈ کی ویکسینیشن کی ہے اس نے کمال کر دیا. یہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس اگر ہاسپٹل میں ایک ایوریج میں آپ کو بتا دوں اگر 100 بچے ہم ٹائیفائڈ بخار کے دیکھتے تھے تو اس سال ہم نے صرف 100. In the discharge of his duties. پہلی بات جناب والا محترم خواجہ صاحب نے 2 مقدمات کا اپنی گفتگو میں اور پھر عدلیہ کے بارے میں بھی کچھ کامنٹس آئے ہیں ذکر کیا. پہلا مقدمہ انہوں نے کہا مریم نواز صاحبہ کے خلاف جو ٹرائل کورٹ میں گیا وہاں سے کنوکشن کی ججمنٹ آئی اور اس کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس پینڈنگ ہے. یہ ایک سب جوڈس میٹر ہے اور پاکستان کا فوجداری قانون کوڈ آف کرمنل پروسیجر یہ کہتا ہے کہ اپیل از دی کنٹینیویشن آف دی ٹرائل، کہ اپیل تسلسل ہے اس ٹرائل کا جو ہوا ہے نیچے عدالت ٹرائل میں کورٹ آف فرسٹ انسٹنس میں. دوسرا انہوں نے ذکر کیا کہ جناب نواز شریف صاحب کے جو مقدمے ہیں وہ کس طرح سے بنائے گئے. ان مقدموں کا فیصلہ ہوا ٹرائل کورٹ سے. اپیلز کی پینڈنسی کے دوران ضابطہ فوجداری کے تحت دفعہ 87 اور 88 کی کارروائی کر کے ان کو اشتہاری قرار دیا گیا، پروکلیمڈ اوفینڈر ان کو کہا گیا. اس لیے یہ معاملہ بھی پینڈنگ ہے. میں پہلی آپ سے درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ کے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں جو بات کی گئی ہے اس کو آپ ایکسپنج کریں کیونکہ یہ آئین کی کھلی خلاف ورزی ہوگی. ایک دوسری بات جناب، ابھی مولانا صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بدھوار کا راز کیا ہے اور ساتھ انہوں نے یہ آفر کی ہے کہ وہ گورنمنٹ اگر کوئی بل لے کے آتی ہے تو اس میں ان کی تجاویز اگر سنی جائیں لیکن وہ رک گئے. میں ان کا جملہ مکمل کر دیتا ہوں. آپ تجاویز دیجئے، ہم ان کو ایگزامن کر کے آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کل صبح لے آئیے، ہم ان کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جن قوانین پہ آپ تجاویز نہیں دیں گے آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ان کو ووٹ ضرور دیں آپ. تیسری بات وہ بھی انہوں نے کہی، مولانا صاحب نے کہا کہ جناب اسپیکر جو آپ کے 2 سال رہتے ہیں، مولانا صاحب کو میرے خیال میں تھوڑا سا یہ آگے دیکھنا شروع ہو گئے صحیح طرف. مولانا صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جو 2 سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے رہتے ہیں ان 2 سالوں کا وقت ان کو دے دیا جائے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اور بدھوار کا راز کھول دینا چاہتا ہوں. آج ہماری ابھی میٹنگ ہوئی ہے، سارے اتحادی وہاں پہ موجود تھے، وہ سارے ایک پیج پہ ہیں. آنے والا پرسوں کا بدھوار انشاءاللہ ہم جوائنٹ سیشن کریں گے اور دن کے 12 بجے جوائنٹ سیشن کریں گے.
آپ نے جو کہا تھا خواب آپ کا ہم نے وہ پورا کر دیا بدھوار والا. تیسری بات سر میں کر رہا تھا, آخری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی کسی تجویز کو پس پشت ڈال کر یا رد کر کے جو بھی ان کے لفظ تھے اس کے خلاف قانون سازی کی گئی ہے. میں ان کو اوپن دعوت دیتا ہوں, بتائیے وہ قانون سازی. اور دوسرا میں پورے ہاؤس کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں مجھے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ملے تھے, اور اسلامی نظریاتی کونسل کا گلہ یہ ہے, یہ بھی بہت لمبے عرصے سے بنا ہوا ایک آئینی ادارہ ہے, کہ جو ریکمنڈیشنز وہ بھیجتے ہیں یہاں ان کے اوپر بحث مباحثہ ہاؤس میں نہیں ہوتا. اس لیے میں دعوت دیتا ہوں آپ تاریخ طے کیجئے. اکبر اللہ. قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد کیسر کی صدارت میں جاری ہے. مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. ناظرین آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ صوبائی دارالحکومت لاہور میں فضائی آلودگی انتہائی سطح پر پہنچ گئی ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس 419 درجے پر پہنچ گیا ہے. شہر کی فضا پر چھائی اسموگ اور اس کے تدارک کے لیے پنجاب حکومت نے اینٹی اسموگ اسکواڈ متعارف کروا دیا ہے. اس حوالے سے مزید بتا رہی ہیں سدرا عاصم اپنی اس رپورٹ میں. صوبائی دارالحکومت لاہور ان دنوں شدید اسموگ کی لپیٹ میں ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک درجے پر پہنچ گیا ہے. پنجاب حکومت نے فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے اینٹی اسموک اسکواڈ قائم کر دیا ہے جو تمام صنعتوں کو ہفتہ وار چیک کرے گا. یہ موقع پہ جائیں گے اور اسموک امیٹنگ پریمیسز ویدر اٹ از بھٹا یا فیکٹری یا کوئی بھی جگہ تو اس پہ جا کے اپنی انفورسمنٹ کریں گے. فضائی آلودگی اور اسموک کے تدارک کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معاون خصوصی اطلاعات پنجاب حسان خاور نے بتایا کہ اینٹی اسموک اسکواڈ میں تمام متعلقہ محکمے شامل ہیں جو صنعتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے کوشاں ہیں. ہر صنعت پہ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کے ایندھن کا استعمال کر رہے ہیں, کیا ان کے پولوشن کنٹرول ڈیوائسز چل رہے ہیں کہ نہیں, کیا ان کے اسکربر چل رہے ہیں کہ نہیں, اور اگر نہیں چلیں گے تو ان کے خلاف جرمانے بھی ہوں گے, کیس بھی ہوں گے, ان کو سیل بھی کیا جا سکتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر ہر اسکواڈ روزانہ 60 صنعتی یونٹ چیک کرے گا اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اور زگ زیگ پر منتقل بھٹوں اور فیکٹریوں کو دوبارہ چیک کیا جائے گا. پنجاب حکومت نے فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے اینٹی اسموک اسکواڈ قائم کر دیا ہے جس کے آنے سے فضائی آلودگی میں کافی حد تک کمی آئے گی. سدرا عاصم, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. ناظرین, گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان کی زیر صدارت ایڈورڈ کالج کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہوا. اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ایڈورڈز کالج کے مستقل پرنسپل کی تعیناتی سے متعلق امور پر گفتگو ہوئی. اجلاس میں مستقل پرنسپل کی تعیناتی تک موجودہ قائم مقام پرنسپل کو کام جاری رکھنے کی منظوری دی گئی. گورنر شاہ فرمان نے ایڈورڈز کالج کے مستقل پرنسپل کی تعیناتی 2 ہفتوں کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں یہ مرحلہ جلد مکمل ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ایڈورڈز کالج صوبے کے تعلیمی اداروں میں ایک تاریخی اور معیاری مقام رکھتا ہے. ایڈورڈز کالج کا تاریخی تعلیمی مقام برقرار رکھنے میں انتہائی سنجیدہ ہے. پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ ہمارے نوجوان باصلاحیت اور آگے بڑھنے کے جذبے سے سرشار ہیں. مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے. لاہور میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں سفارشی کلچر کا خاتمہ کر کے میرٹ کا بول بالا کیا گیا ہے جس کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں. گورنر پنجاب نے طلبہ طالبات پر زور دیا کہ وہ حصول علم کے بعد خود کو ملک کو قوم کے لیے وقف کر دیں. ناظرین, جنوبی پنجاب کی ثقافت اجاگر کرنے کے لیے پنجاب آرٹس کونسل کے زیر اہتمام ثقافتی شو سانول مٹھرا منعقد کیا گیا. اس رنگ شو کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں لاہور سے ہمارے نمائندے محمد شکیل ملک. جنوبی پنجاب کی ثقافت نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں منفرد پہچان رکھتی ہے. اس ثقافت میں روحی کی خوشبو, چولستان کی خاموشی, ڈیرہ غازی خان کے سنگلاخ پہاڑوں کی سربلندی اور ملتان کے زرخیز سبززار یہاں آنے والوں کو اپنے شہر میں لے لیتے ہیں. سانول مٹھرا شو میں جنوبی پنجاب کی اس خوبصورت ثقافت کے رنگ بکھیرے گئے تھے جسے حاضرین نے
बेहद सराहा। खुसूसन चोलिस्तान की मखसूस पहचान दाची पर बैठकर फनकारों की परफॉर्मेंस को बेहद पसंद किया गया। ख्वाजा गुलाम फरीद के कलाम ने तो दिलकश समा बांध दिया। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पिशावर में सजा पुरानी और नायाब गाड़ियों का रंगारंग मेला। बार में विंटेज कार शो में 50 से ज्यादा चमचमाती क्लासिक गाड़ियों ने शहरियों को अपने शहर में जकड़ लिया। मुदस्सिर खान की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी ने विंटेज एंड क्लासिक कार शो का इनेकाद किया। कार शो में 50 से ज़्यादा पुरानी और नायाब गाड़ियां मौजूद थीं। ये अभी हमारी 12वीं शो है और ये हमने एक बहुत छोटे लेवल से शुरू किया और आज माशाल्लाह देखें ये सारे पेशावर इस शो का इंतज़ार कर रहे थे कि ये कब होगी। द पर्पस इज़ टू प्रमोट टूरिज्म इन द रीजन। लोगों को बताएं कि ये जगह सेफ़ है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कराची, लाहौर, मुल्तान से लोग आ रहे हैं पुरानी गाड़ियाँ लेके विदाउट एनी फियर। विंटेज कार शो में शामिल गाड़ियाँ कराची से खैबर और फिर पेशावर पहुँची थी। पुरानी और कदीम गाड़ियों को शहरियों ने न सिर्फ पसंद किया बल्कि तारीखी गाड़ियों के साथ सेल्फियाँ भी बनवाई। इट्स वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। सारी बड़ी खूबसूरत पुरानी कार्स इकट्ठी की हुई हैं। आई एम अ लवर ऑफ विंटेज कार्स एंड आल्सो माय किड्स। इधर आती है इसलिए अच्छा लगती है क्योंकि इसकी सारी विंटेज कार्स होती हैं। मुझे विंटेज कार्स बहुत अच्छी लगती है। महकमा सियाहत के मुताबिक क्लासिक कार रैली के इनेकाद का बुनियादी मकसद शहरियों को तफरीह का मौका फराहम करना था। कार शो में रवायती मौसीकी और खटक डांस भी पेश किया गया जिससे शुरका खूब लुत्फ अंदोज हुए। मुख्तलिफ अदवार में सड़कों पर चलने वाली इन पुरानी गाड़ियों का शुमार एंटीक में होता है जिन्हें आज के दौर में चलते देखकर यकीनन एक खुशगवार तजुर्बा है। मुदस्सिर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद ICC टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मेगा इवेंट के अख्ताम के बाद टीम ऑफ द टूर्नामेंट तश्कील दी है। इवेंट के दौरान मिसाली क़यादत और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को कप्तान नामजद किया गया है। टीम में फातेह ऑस्ट्रेलिया के 3, पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका के 2 जबकि न्यूजीलैंड का 1 खिलाड़ी शामिल है। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी भी टीम का हिस्सा है। 12 रुकनी टीम में कोई भी भारतीय खिलाड़ी जगह नहीं बना सका। नाज़रीन, माज़ी की तरह PTV न्यूज़ ने इस मरतबा भी T20 वर्ल्ड कप की भरपूर कवरेज की। नाजरीन के लिए लम्हा बलम्हा अपडेट्स, खबरों और लाइव तगज़िये भी पेश किया गया और इस मरतबा साइन लैंग्वेज का एलिमेंट भी हमारी ट्रांसमिशन में शामिल था। बिल्कुल, और इसी हवाले से एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं मुजीबुर रहमान। आइए देखते हैं। रिवायतों के अमीन PTV न्यूज़ ने माजी की तरह अपना इम्तियाज़ बरकरार रखते हुए 7वें T20 आलमी कप की शानदार कवरेज की। PTV न्यूज़ ने मेगा इवेंट से मुतल्लिक खबरों और हेडलाइंस के साथ साथ खुसूसी प्रोग्राम और ट्रांसमिशन के जरिए लम्हा ब लम्हा अपने नाजरीन को अपडेट्स फराहम की। PTV न्यूज़ की स्पोर्ट्स टीम ने डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स आरिफ महमूद और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ओन अब्बास शाही के खुसूसी ताउन से दिन रात जान फिशानी से काम किया। PTV न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम T20 वर्ल्ड कप स्पेशल में तज्जिये और तबसरे के साथ साथ कुव्वत समाअत और गोयाई से महरूम अफराद के लिए पहली मरतबा साइन लैंग्वेज कमेंट्री भी पेश की गई। प्रोग्राम 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक रोजाना शाम 6:40 से 7 बजे तक, जबकि दूसरे मैच के इख्तिताम पर रात 11 बजे बराह रास्त नशर किया गया। स्पेशल प्रोग्राम में स्पोर्ट्स हेड नमूद मुस्लिम, स्पोर्ट्स रिपोर्टर जीशान कयूम, अरसलान शिराजी, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद ओवैस, बुशरा गुल और नीलम अरशद शायकीन क्रिकेट को अपनी माहिराना राय से आगाह करते रहे। जबकि साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहसिन हसन खान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इकबाल जमील, आलिया रशीद, अब्दुल जब्बार फैसल, अब्दुल गफ्फार और आसिफ खान ने भी टेलीफोन पर अपने तज्जिये पेश किए। माहिरीन के तज्जियों और तबसरों के साथ साथ खुसूसी रिपोर्ट्स भी ट्रांसमिशन और न्यूज़ बुलेटिन का हिस्सा रही। इस्लामाबाद की F9 पार्क में पाकिस्तान टेलीविजन और CDA के इश्तराक से पाकिस्तान के मैचेस और सेमीफाइनल्स दिखाने के लिए लाइव स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया था, जहां से न्यूज़ रिपोर्टर्स शायकीन के जोश जज्बे और इंतजामात के हवाले से लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहे। लाहौर, कराची, पेशावर,
क्वेटा, गुजरांवाला और फैसलाबाद से पीटीवी न्यूज़ के नुमाइंदों ने भी बराबर का हिस्सा डाला और शायकीन के अलावा क्रिकेटर्स के घर वालों के भी इंटरव्यूज किए। इस दौरान माविन स्टाफ, एनएलईज, कैमरामैन, इंजीनियर्स, मेकअप आर्टिस्ट और दीगर अमले ने भी भरपूर ताउन किया। खुसूसी अफराद के लिए पहली मरतबा साइन लैंग्वेज कमेंट्री न सिर्फ पीटीवी न्यूज़ का खासा रही बल्कि निजी चैनल्स और दुनिया भर के मीडिया हाउसेस के लिए काबिल तकलीद है। मुजीबुल हक, पीटीवी न्यूज़, स्पोर्ट्स डेस्क, इस्लामाबाद। नाज़रीन, इसके साथ ही कैबिनेट आवर का वक्त भी मुकम्मल हुआ। हमें हमारी न्यूज़ टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ रहिए।